Hello, my dear students. How are you all? I hope everybody is doing very well in this lockdown. I am Pavitra Bag here to teach you biology. सो आज स्टार्ट करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग इस चैप्टर का बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। ओके, मेरे चैनल बायोलॉजिक्स p.bag में। ओके, एंड जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक खत्म हो चुका है, आज स्टार्ट करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने का पहला स्टेज क्या क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देन देखेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स in which male gametes transfer to a suitable place and to reach to the female sex gamete to fertilize. Okay, देन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को अदरवाइज सिंगेमी भी बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? इट इज नथिंग बट द सिंपली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, लास्ट वन जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में लास्ट जो इवेंट्स है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट कैसे होता है, देन जायगोट से कैसे बेबी डेवलप होता है, फीटस कैसे डेवलप होता है, एंड बेबी कैसे बर्थ लेता है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द पार्चुरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो ये एक वीडियो देखो, ये जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट स्टार्ट होने से पहले। एंजॉय दिस वीडियो। Fertilization in humans is internal. It takes place inside the body of the female. Semen, which contains the sperms, is introduced into the female genital tract during the act of copulation. The deposition of sperms in the vagina is called insemination. Human sperms are motile and rapidly swim towards the ovum, lying in the fallopian tube. The sperms pass the cervix, enter the uterus, and finally reach the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. This is the site where the ovum lies and fertilization takes place. When a sperm meets the ovum is in the secondary oocyte stage. It has not yet completed its second meiotic division. The fusion of sperm and ovum is called fertilization. For fertilization to take place, the sperms must be released in the vagina during the period that the egg is alive, that is, within 24 hours after ovulation. The sperm has to pass through the corona radiata and the zona pellucida to reach the plasma membrane of the ovum. When it reaches the zona pellucida, the acrosome releases its contents of lytic enzymes. These enzymes dissolve the zona pellucida. The sperm plasma membrane then fuses with the egg plasma membrane. This fusion triggers the secondary oocyte to complete its second meiotic division. The second meiotic division is also unequal and leads to the formation of a second polar body and a haploid ovum. The nucleus of the ovum is now called the female pronucleus. The cortical granules present below the egg plasma membrane release enzymes which harden the zona pellucida and block further entry of sperms. The sperm nucleus now enters the cytoplasm of the ovum. The sperm nucleus is now termed the male pronucleus. The male and female pronuclei come together and fuse. The male and female chromosomes mix. This event is called karyogamy or amphimixis. Fertilization is thus completed.
The fertilized ovum is called the zygote. Identical twins are formed when the zygote splits into two. Each split portion then develops into a complete new individual, and both are exactly identical to each other. On the other hand, non-identical or fraternal twins are formed when two separate eggs develop in the mother's body and they get fertilized by two separate sperms. Okay, so hope you all enjoyed the video. Let's move to the another topics. Okay, that is gametogenesis, formation of gametes. Gametogenesis क्या होता है? That is nothing but the simply we can say that the formation of gametes. Okay, gametogenesis, gameto the word simply define that gametes and genesis मतलब हो गया formation. So gametogenesis का मतलब हो गया formation of gametes. Okay, now let me tell you something here. Okay, here you can look, you can see एक हैप्लॉइड जर्म सेल है. देखो जर्म सेल, जब मैंने बोला जर्म सेल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे आइदर स्पर्म, ओके, आइदर स्पर्म और यू कैन से एग. ओके, सो स्पर्म और एग को हम यहाँ पे जर्म सेल बोलेंगे. सो जर्म सेल ऑलवेज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं एन में. ओके, सो हैप्लॉइड जर्म सेल का मतलब क्या हो गया? ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, ओनली एक सेट ऑफ क्रोमोजोम को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल. और यहाँ पे हम हैप्लॉइड सेल किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे स्पर्म एंड एग को. जनरली दे आर द जर्म सेल्स. ओके, नाउ कम टू द अनदर diagram. Here we have a diploid cell. Diploid cell is denoted as 2n. ओके, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? अदर देन द जर्म सेल. जर्म सेल को छोड़कर बाकी जितने सेल्स हो गए उनको क्या बोलेंगे हम? डिप्लॉइड सेल. जनरली इनको हम सोमाटिक सेल्स बोलते हैं. ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या हो गया? दे हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. इतना बात ध्यान रखना होगा, यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू रिमेंबर. दैट इज डिप्लॉइड cells means two sets of chromosomes. Okay, the cells have two sets of chromosome. Okay, now gametogenesis होता कैसे है? पहले gametogenesis हमको ये ध्यान में रखना होगा कि gametogenesis कौन से सेल्स में होता है, कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स में होता है. पहले तो gametogenesis का मतलब है हमारा गैमेट फॉर्मेशन होना. गैमेट का मतलब हो गया स्पर्म, ओके, एंड ओवम और यू कैन से एग. सो स्पर्म एक एन है एंड ओवम इज ऑल्सो एन एन. ओके, सो एन मतलब हो गया तुम्हारा हैप्लॉइड सेल. तो हैप्लॉइड मतलब कौन से सेल्स में फॉर्म होगा, कौन से सेल से फॉर्म होगा. सो इन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए हैप्लॉइड सेल. सो कैसे प्रोड्यूस होता है? देखो, हमको गैमेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले एक डिप्लॉइड सेल चाहिए होगा. इसका क्या मतलब हो गया? गैमेटोजेनेसिस अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स. ओके, डिप्लॉइड सेल से उसका माइटोसिस होगा, देन मियोसिस होगा. मियोसिस होने के बाद तुम्हारा दो हैप्लॉइड सेल बनेगा. दो हैप्लॉइड सेल मिलने के बाद हैप्लॉइड सेल फ्यूजन होगा उन दोनों के बीच में. देन हमको मिलेगा हमारा और एक डिप्लॉइड सेल व्हिच इज जाइगोट. ओके, ये हमारा जाइगोट मिल जाएगा. यू कैन सी हियर इन ऑरेंज कलर दैट इज रिटन एज जाइगोट, दैट इज 2n मतलब डिप्लॉइड सेल. हमको एक डिप्लॉइड सेल से, डिप्लॉइड सेल का ये जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम है, वो अलग होंगे. फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल, उन दोनों का जर्म सेल मिलके हमको क्या बनाना है? जाइगोट्स बनाना है. तो ये हो गया हमारा गैमेट्स. ये जो एन है, ये जो हैप्लॉइड सेल है, इनको क्या बोलेंगे हम? गैमेट्स. सो दिस इज हाउ. कौन से प्रोसेस में हो रहा है ये याद रखना है हमको. पहले मियोसिस प्रोसेस में हो रहा है गैमेटोजेनेसिस. कौन से सेल से हो रहा है? डिप्लॉइड सेल से हो रहा है. किस टाइप का सेल्स बन रहा है? हैप्लॉइड सेल बन रहा है. ओके, सो इतना ध्यान रखना होगा इस बात में. ओके, नाउ मूव टू द अनदर थिंग, गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का टाइप्स है बच्चों. एक है आइसोगेमी, दूसरा है एनाइसोगेमी, थर्ड वन इज योर ऊगेमी. ओके, ये टर्म्स तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम लोग को आता है ये सब, फिर भी हम लोग देखते हैं. ओके,
आइसोगेमी, आइसो मतलब है सेम, इतना ध्यान रखना, आइसो मतलब है सेम एंड गेमी मतलब यहाँ पे गैमेट्स हो गया। ओके, इसका क्या मतलब हो गया, गैमेट्स। ओके, गेमी का मतलब हो गया, एक मिनट, गेमी का मतलब हो गया गैमेट्स। ओके, गैमेट्स मतलब आइदर स्पर्म और ओवम। ओके, सो आइसोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ मोर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मोर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, ये बात को तुम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्या हो रहा, क्या बोल रहा है, दो सिमिलर गैमेट्स में फ्यूजन होगा जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे मतलब सेम दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे और एक टर्म में पढ़ लेते हैं, आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स का मतलब क्या हो गया, सेम स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ गैमेट्स, उसका स्ट्रक्चर एंड साइज दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर एंड साइज जो होगा वो सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोगैमेट्स। और उन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमी। उसका एग्जाम्पल है बच्चों क्लामिडोमोनास, माइक्रोसिस्टिस एंड क्लाइडोफोरा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ये सब। यू हैव टू मेमोराइज दिस वन फॉर नीट एग्जाम एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो नाउ यू कैन लुक हियर व्हाट इज आइसोगेमी। देखो यहाँ पे आइसोगेमी तुम लोग देख सकते हो, ये तुम्हारा मेल है, ये तुम्हारा फीमेल है, पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर एंड इसका स्ट्रक्चर सेम है, इसका साइज सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है एंड साइज भी सेम है, तो इनका मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है बच्चों, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है। सो आइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं गैमेट्स, बोथ मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। उसी टाइप का हम फ्यूजन को आइसोगेमी बोलेंगे और उनका जो गैमेट्स को हम बोलेंगे आइसोगैमेट्स। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस दैट इज एनिसोगेमी। एनिसोगेमी का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज। यहाँ पे तुम लोग को एक चीज का ध्यान देना होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरली सेम है, स्ट्रक्चर उन दोनों का सेम होगा बट उनका साइज में डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग अलग रहेंगे। यू कैन सी हियर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बट एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है, तो स्ट्रक्चरली दोनों अलग अलग होंगे। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बड़ा साइज है, ये जो बिगर वन है, ये मेल सेक्स गैमेट है या फीमेल सेक्स गैमेट है, मुझे बताना है तुम लोगों को। और ये छोटा वाला मेल है कि फीमेल है, ये तुम लोग को मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ओके, देखो यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो अलग टाइप का, देखो स्ट्रक्चर सेम है बट उन दोनों का जो साइज है अलग है, तो यहाँ पे हेटेरोगेमी हो गया है। ओके, सो एनिसोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज। एग्जाम्पल है क्लामिडोमिनस ब्राउनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लामिडोमिनस ब्राउनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट example of anisogamy because it's regularly coming in the NEET exam. Okay, बहुत बार आ चुका है क्लामिडोमिनस का ब्राउनी जो हमारा नीट एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस वन इज। ओके, चलो एनिसोगेमी आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ कम टू द अनदर टर्म दैट इज oogeमी। ओके, oogeमी, तो oogeमी का मतलब तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, दिस इज द फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स। ओके, सो यहाँ पे जो दो गैमेट्स हैं, एक है तुम्हारा लार्ज है, एक देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे oogeमी है, एक तो लार्ज है, ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता, देन ये फीमेल गैमेट्स है। तो जो बड़ा है और जो नॉन मोटाइल है उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स हियर। एंड देखो यहाँ पे स्मॉल मोटाइल्स है, स्मॉल मोटाइल्स मेल गैमेट्स। ओके, मोटाइल क्यों है, बिकॉज इट हैज फ्लाजेला। ओके, नाउ आई हैव ए क्वेश्चन दैट व्हाई
द फीमेल गैमेट्स इज लार्जर एंड वाई द मेल गैमेट इज स्मॉलर। ओके, या इसका आंसर भी दे देता हूं, क्योंकि लार्जर क्यों होता है फीमेल गैमेट, क्योंकि लार्जर इसीलिए होता है, लार्जर फीमेल गैमेट्स में हमारा न्यूट्रिशन लोडेड रहता है। न्यूट्रिशन क्यों लोडेड रहता है, जब हमारा मेल फीमेल दोनों का गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, उसी टाइम क्या होगा, जो स्पर्म है, जो मेल का जो गैमेट्स है, जब फ्यूज होने के बाद जब ओवम में फीमेल गैमेट्स में एंटर करेगा, तो जो स्पर्म है फीमेल गैमेट्स का न्यूट्रिशन को खाएगा, अब अपटेक करेगा, देन ग्रोथ करेगा जाइगोट का। सो दैट्स व्हाई द ओवम और एग इज लार्जर इन साइज एंड द sperm is the smaller one. Okay, now here you can look. Okay, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये हमारा आइसोगैमेट्स है। देखो स्ट्रक्चर एंड साइज बिल्कुल सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स बोलेंगे। और इसका प्रोसेस क्या होगा, आइसोगेमी होगा, आइसोगेमी। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है क्लाइडोफोरा का, एक अलगी है बच्चों। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइडोफोरा विच इज एन अलगी। ओके, ये भी तुम लोग को याद रखना होगा। देन कम टू द हेट्रोगैमेट्स, ये अलग है, ये अलग है, देखो बिल्कुल अलग लग रहा है। ये तुम्हारा फीमेल का जो तुम्हारा गैमेट्स है, ये मेल का गैमेट्स है, ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है फ्यूकस का, एग्जाम्पल है फ्यूकस। फ्यूकस इज ऑल्सो एन algae. ओके, नाउ कम टू द फिगर नंबर सी। ये ह्यूमन बींग्स का तुम्हारा डायग्राम है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ओवम इज नॉन मोटाइल एंड लार्जर देन द स्पर्म, एंड द स्पर्म इज smaller than the ovum and motile in nature. Okay, now come to the gametogenesis process में और एक प्रोसेस होता है जनरली बच्चों, दैट इज ऑल्टरनेशन जनरेशन। ऑल्टरनेशन जनरेशन में देखो क्या होता है, ऑल्टरनेशन जनरेशन में एक जनरेशन का अल्टरनेट होता रहता है। अगर एक प्लांट हाप्लॉइड स्टेज में है, ओके, सो वो चेंज हो जाएगा डिप्लॉइड स्टेज में, एंड फिर से डिप्लॉइड से हाप्लॉइड में चेंज हो जाएगा। हाप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हाप्लॉइड, हाप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हाप्लॉइड। दिस इज द अल्टरनेशन जनरेशन। यू कैन सी हियर, सो हियर वी हैव ए डिप्लॉइड प्लांट। बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस इट gets changes into haploid cell. सो ये हो गया डिप्लॉइड टू हाप्लॉइड। देन हाप्लॉइड प्लांट्स में तुम्हारा हाप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होंगे। हाप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होने के बाद या इन दोनों के बीच में फ्यूज होके, देखो फर्टिलाइजेशन होके हमें मिल जाएगा डिप्लॉइड सेल। तो क्या हुआ, हाप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हाप्लॉइड, हाप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हाप्लॉइड। ओके, दिस इज द अल्टरनेशन जनरेशन। ओके, ये तुम्हारा बहुत सारे एल्गी में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है। एग्जाम्पल देख लो इसका, जनरली प्रोटोजोआंस में होता है, जेलीफिश में होता है, फ्लैटवर्म में होता है, लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स, algae एटसेट्रा। ओके, ये एग्जाम्पल तुम लोगों को याद रखना है किस किस में ये तुम्हारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हम प्लांट किंगडम में भी इसका पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी और एक बार पढ़ा दिया, इसका एग्जाम्पल भी दे दिया, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक। एक टेबल यहाँ पे दिया है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दिया है। ओके, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर दिया है, मेयोसाइट मतलब यहाँ पे दिया है डिप्लॉइड का नंबर दिया है। ओके, यहाँ पे दिया है क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है, उसका डिप्लॉइड में क्रोमोजोम नंबर दिया है और हाप्लॉइड सेल में और गैमेट में क्रोमोजोम नंबर दिया है। और मुझे बताओ बच्चों, एन इज हाप्लॉइड, ओके, 2n is diploid. So if n equal to 2 then 2n equal to 4. This is so simple. इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन का डिप्लॉइड जो क्रोमोजोम नंबर दिया है 46, तो हाप्लॉइड कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, सो सिंपल 23 होगा। हाउस फ्लाई का 12 दिया है, तो कितना होगा 6 होगा हाप्लॉइड।
देन कम टू द रेड का नहीं दिया है डिप्लॉयड, उसका दिया है हाप्लॉयड 21। ये क्या है तुम लोग को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, इसका क्या डिप्लॉयड सेल होगा। सो ये टेबल तुम लोग को फिल करना है बच्चों, एंड मुझे बताना है तुम लोग कमेंट सेक्शन में आकर। ओके, नाउ लुक हियर, some algae and fungi produces identical gametes called heterogametes on isogametes and process is called isogamy. For example, Heliothrius and Cladovera, जो कि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ ये तो मैंने अदर ऑर्गेनिजम्स का बता दिया कि क्या क्या कैसे तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस होता है। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन गैमेटोजेनेसिस, दैट इज इन आवर ह्यूमन बींग्स, दैट इज इन द केस ऑफ फीमेल oogenesis। oogenesis का मतलब क्या है? ओ का मतलब हो गया ओवम, ओके, ओ का मतलब हो गया ओवम, जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। क्या हो गया इसका मतलब? फॉर्मेशन। सो ओवम फॉर्मेशन पढ़ना है हमको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसको समझते हैं अच्छे से। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज जो फीमेल होते हैं, फीमेल जनरली हम देखो, फीमेल जनरली जन्म होने से पहले बिफोर बर्थ, जब मदर की यूटरस में फीटस के हिसाब से रहते हैं, मदर के पेट में जब पलते हैं, उसी टाइम से ही ये लोग गैमेटोजेनेसिस जो oogenesis प्रोसेस है स्टार्ट कर देते हैं। फीटल स्टेज में ही ये लोग गैमेट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब oogenesis प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। oogenesis प्रोसेस के लिए, oogenesis के लिए, ओवम प्रोडक्शन के लिए हमको एक स्पेशलाइज सेल चाहिए होता है, उसका नाम है oogonium, उसका नाम है oogonium। oogonium इज जनरली डिप्लॉयड इन नेचर, 2n होता है। देन म्योसिस का इसमें माइटोसिस होता है, oogoनियम का माइटोसिस होने के बाद, एक मिनट, oogoनियम का माइटोसिस होता रहेगा, माइटोसिस होकर हमको मिलेगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि हम जानते हैं माइटोसिस में जब डिप्लॉयड सेल में होता है, जब माइटोसिस, तो डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल मिलता है हमको। तो जो पहला सेल मिलता है oogoनियम से माइटोसिस से हमको, वो है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करता है? ये अपना म्योसिस 1 स्टार्ट कर देता है। ओके, पहला हो गया माइटोसिस, देन प्राइमरी oocyte मिला हमको, देन प्राइमरी oocyte क्या कर रहा है? वो म्योसिस 1 स्टार्ट कर रहा है। क्या स्टार्ट कर रहा है? 1 स्टार्ट कर रहा है, म्योसिस 1। म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाता है। प्राइमरी oocyte क्या करेगा? म्योसिस 1 स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करके प्रोफेज, म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाएगा। ओके, प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। देन ये हमारा फीटल स्टेज में हुआ। इतना जो मैंने अभी इवेंट बताया oogenesis फीमेल का, फीटल स्टेज में क्या हुआ? फीटल स्टेज में जनरली oogoनियम जो हमारा डिप्लॉयड सेल है उसका माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होकर बहुत सारे oogoनियम बना, उसी oogoनियम में से कुछ सेल्स जो हैं प्राइमरी oocytes बन गए। उन्हीं प्राइमरी oocytes क्या किए? म्योसिस 1 स्टार्ट किए। म्योसिस 1 स्टार्ट करके म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 में स्टॉप हो गए। देन बेबी बर्थ लेता है। बर्थ लेने के बाद वो प्यूबर्टी में जब प्यूबर्टी में पहुंचता है, प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में बंद था वो स्टार्ट कर देता है फिर से म्योसिस 1। ओके, म्योसिस 1 स्टार्ट कर देता है, प्रोफेज 1 से फिर से स्टार्ट होता है। तो म्योसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमको 2 सेल मिलते हैं, एक है तुम्हारा सेकेंडरी oocyte और एक है हमारा पोलर बॉडी। ओके, पोलर बॉडी जो होते हैं स्मॉलर होते हैं सेकेंडरी oocyte के हिसाब से देखा जाए तो। देखो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेकेंडरी oocyte में जो है न्यूट्रिशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में थोड़ा न्यूट्रिशन कम रह जाता है। नाउ सेकेंडरी oocyte हाप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? देखो ये बेसिकली सेकेंडरी oocyte इज
डिप्लॉयड बिकॉज यहाँ पे म्यूसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। सो म्यूसिस 1 के बाद, एक मिनट बच्चों, आई एम सॉरी गलत बोल दिया, म्यूसिस 1 के बाद हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो हाप्लॉइड इन नेचर है। ओके, हाप्लॉइड इन नेचर है, दैट इज एन। ओके, दैट इज एन है हमारा। देन सेकेंडरी oocyte अंडरगो म्यूसिस 2 प्रोसेस। ओके, म्यूसिस 2 प्रोसेस में जाने के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा जाइगोट देगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाइगोट देगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सेकेंडरी oocyte म्यूसिस 2 जाएगा, म्यूसिस 2 में जाकर जब फर्टिलाइज करेगा तभी जाइगोट बनेगा। जब फर्टिलाइज नहीं करेगा तब तक ये जाइगोट नहीं देगा। कैसे, देखो यहाँ पे और चीज़ें देखो हमको समझना है। यहाँ पे और एक बात है, म्यूसिस 2 कंप्लीटेड ओनली इफ फर्टिलाइज। अगर म्यूसिस 2 कर रहा है तो फर्टिलाइज होने के बाद ही ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 एंड ओवुलेटेड। तो ये बोला जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये म्यूसिस 2 का मेटाफेज 2 में स्टॉप हो गया, मेटाफेज 2 में स्टॉप हो गया। मेटाफेज 2 में स्टॉप होने के बाद ये ओवुलेटेड हो गया। ओवुलेटेड का मतलब क्या है, ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन हुआ, जो ओवुलेशन जब हुआ हमको मिला सेकेंडरी oocyte। यू कैन सी हियर, हमको सेकेंडरी oocyte मिला। तो और एक बार मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ से स्टार्ट करके। सो हमारे फीमेल बॉडी में oogoनियम होते हैं जिसको हम कुछ प्राइमोडियल सेल्स और oogoनियम बोलते हैं। तो वहाँ से तुम्हारा प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है। प्राइमरी oocyte को हम प्राइमरी फॉलिकल बोल सकते हैं। ओके, देन प्राइमरी फॉलिकल से हमको ग्रोथ होके सेकेंडरी फॉलिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। देन हमको फाइनली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल मिलता है जिसको हम मेच्योर फॉलिकल बोलते हैं। एंड सेकेंडरी oocyte में वहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रोसेस में हमारा मेच्योर फॉलिकल दैट इज ग्राफियन फॉलिकल से हमको मिल जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte। क्या मिलता है हमको, सेकेंडरी oocyte। देन सेकेंडरी oocyte जब फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ तो हमको मिल जाता है ओवम, तभी जाकर हमको मिलता है ओवम। ओके, ओवम। ओके, देन ओवम से तुम्हारा जाइगोट बनता है। और एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। देखो ये जो यहाँ पे है, देखो ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकुलर सेल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिक्यूल डेवलप होकर हमको सेकेंडरी फॉलिकल मिलेगा। देन हमारा मेच्योर हो जाएगा, देन इनको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी ओवम और सेकेंडरी oocyte। जब मेच्योर हो जाता है ये बस्ट हो जाता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बस्ट होने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है सेकेंडरी, एक मिनट, हमको मिलता है सेकेंडरी oocyte। ओके, वी गॉट सेकेंडरी oocyte. After getting secondary oocyte, the Graafian follicle rupture to form early corpus luteum, then it becomes your corpus luteum, then finally degraded to become corpus albicans. Okay, ये बात आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। इसको और एक बार सिंपली बता दे रहा हूँ। तो पहला है oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte तुम्हारा म्यूसिस 1 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte मिलेगा। सेकेंडरी oocyte का म्यूसिस 2 कंप्लीट होने के बाद हमको मिलेगा ओवम। ओवम के साथ हमको फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म के साथ जाइगोट मिलेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओके, so outer layer is corona radiata, then just below of the corona radiata zona pellucida is present, and the outer membrane of the ovum is known as vitelline membrane. Okay, then we get the nucleus in the center of the ovum. Okay, then the plasma cytoplasm of the ovum is known as ooplasm. Okay, now यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तुम्हारा आउटर लेयर या आउटर लेयर टू इनर लेयर एंड इनर लेयर टू आउटर लेयर, ऐसे करके पूछेगा कि तुम्हारा जो ह्यूमन ओवम है उसका
लेयर पूछेगा, आउटर लेयर टू इनर लेयर का सीक्वेंस पूछेगा, नहीं तो इनर लेयर टू आउटर लेयर का सीक्वेंस पूछेगा। अगर आउटर लेयर टू इनर लेयर पूछेगा तो कोरोना रेडिएटा विल बी 1, जोना पेलोसिटा विल बी द 2 एंड वाइटेलिन मेम्ब्रेन इज द 3 एंड न्यूक्लियस इज द 4, ऐसे होगा। अगर ये तुम्हारा इनर लेयर टू द आउटर लेयर पूछेगा तो तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाएगा 1, या तुम्हारा सिर्फ मेम्ब्रेन पूछेगा तो वाइटेलिन मेम्ब्रेन हो जाएगा 1, जोना पेलोसिटा हो जाएगा 2 एंड कोरोना रेडिएटा विल बी द 3, लास्ट वन दैट इज 3। ओके, सो ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। पहला थिंग हमको जानना होगा कि ये मेल प्रोड्यूस नहीं करता, फीमेल प्रोड्यूस करता है। लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स एंड फैट। बच्चों ध्यान से सुनो, हमारा जो ओवम है न्यूट्रिएंट्स एंड फैट्स में बंधा हुआ होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड फैट्स होता है, इसीलिए ये लार्ज इन साइज होता है। ओके, देन दे आर स्टैटिक, स्टेशनरी और नॉन मोटाइल इन नेचर। ये मूव नहीं कर पाते हैं, ओवम कैन नॉट मूव। ओके, इसीलिए ये लार्जर देन स्पर्म होते हैं, इसको मूव ही नहीं करना है, और न्यूट्रिशन के साथ ये लोडेड है तो मूव ही नहीं करता है, सो ये लार्जर देन स्पर्म हो गया। नाउ कम टू द गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस क्या हो गया, यहाँ पे हम स्पर्माटो एंड जेनेसिस, स्पर्माटो मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्पर्म, ओके, एंड जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। ओके, दिस इज फॉर्मेशन। नाउ देखते हैं कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। सो लेट्स सी स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस जैसे तुम्हारा जो oogenesis में एक सेल चाहिए होता था oogoनियम, ठीक उसी तरह हमें भी यहाँ पे चाहिए एक स्पर्माटोगोनियम। तो ये है हमारा स्पर्माटोगोनियम। स्पर्माटोगोनियम जो तुम्हारा माइटोसिस प्रोसेस जाकर तुम्हारा यहाँ पे और बहुत सारे स्पर्माटोगोनियम बनाया है। स्पर्माटोगोनियम से तुम्हारा क्या कुछ मिला है हमको, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट एंड प्राइमरी स्पर्माटोसाइट अंडरगो द meiosis 1 to form secondary spermatocyte and secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to produce spermatid. Okay, spermatid then differentiate to form spermatozoa or sperm. You can say sperm, हम इसको स्पर्म भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे कुछ जानने का बात है, जो स्पर्माटोगोनियम होते हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। प्राइमरी oocyte is also diploid in nature, secondary oocyte is also diploid in nature, but spermatid is, सॉरी एक मिनट गलत बोल दिया फिर से, देखो secondary oocyte is haploid in nature, then spermatid is also haploid in nature, and spermatid में तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन होके स्पर्माटोजोआ और स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओके, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सो स्पर्माटिड टू स्पर्म, तो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्माटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्माटोजेनेसिस। ध्यान में ये बात को रखना बच्चों, बहुत बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन होते हैं स्पर्माटोजेनेसिस में एंड स्पर्मियोजेनेसिस में। ओके, ये दोनों अलग हैं, बट बच्चे जो क्या करते हैं इन दोनों वर्ड को सेम समझते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ, स्पर्माटोजेनेसिस का मतलब है सिंपली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्माटोगोनियम। स्पर्माटोगोनियम से स्पर्म फॉर्मेशन होना को स्पर्माटोजेनेसिस, बट स्पर्माटिड से स्पर्म फॉर्मेशन होना को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, now have a look into our beautiful structure that is our sperm. sperm का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ये है हमारा हेड पार्ट, ओके, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म, दिस इज द मिडिल पार्ट, ओके, मिडिल पीस यू कैन से, एंड दिस इज द टेल वन। ओके, इसका थोड़ा लेवलिंग देख लेते हैं, क्या है लेवलिंग इसमें। इसका हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
हेड के टॉप पार्ट में एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम में हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है? दैट हेल्प इन द dissolving of corona radiata and the zona pellucida। ओके, ये दोनों लेयर को ब्रेक डाउन या डिजोल्व करने में हेल्प करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दैट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज प्रेजेंट इन द एक्रोजोम। ओके, नाउ वी हैव सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से तुम्हारा पूरा का पूरा टेल बनता है। एंड द यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? फॉर द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। ओके, नाउ वी हैव एक्सियल फिलामेंट और यू कैन से फ्लैजेला हियर। ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, नाउ ये जो हमारा स्पर्माटोगोनियम प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? स्पर्माटोगोनियम तुम्हारा टेस्टिस में एक सेमिनिफेरस ट्यूबल का नाम एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर स्पर्माटोगोनियम होते हैं। स्पर्माटोगोनियम डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बनता है, देन वो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनता है, देन तुम्हारा स्पर्माटिड बनता है। स्पर्माटिड से हमारा स्पर्म बनते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग जो तुम लोग को जानना होगा, ये जो स्पर्माटोजेनेसिस है कब होता है? बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी? इट इज ऑलवेज अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, नॉट बिफोर दैट। ओके, formation of sperm is always done after puberty। okay, so another things about the sperm has no nutrients stored, they are motile in nature and they are smaller than the ovum। okay, now transfer of gametes। okay, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स क्या होता है? देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ट्रांसफर टू ए सुइटेबल लोकेशन सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। देखो, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में हमको क्या समझना होगा? इतना समझना होगा कि जो हमारा गैमेट्स हैं एक ऐसा लोकेशन में पहुंचना चाहिए, दोनों का दोनों, तुम्हारा स्पर्म भी पहुंचना चाहिए एंड ओवम में पहुंचना चाहिए, ताकि दोनों में फ्यूजन हो सके। जैसे कि मैं अगर ह्यूमन केस में बोलूंगा, ह्यूमन के केस में अगर ओवेरी में होगा तुम्हारा ओवम, तो समटाइम्स फर्टिलाइजेशन होना डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि होता है कभी कभी, बट फर्टिलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ओवम को, फीमेल का ओवम को ओवेरी से निकल कर हमारा जो स्मेक रीजन होता है वहां पे पहुंचना होता है। वहां पे जब पहुंचेगा तभी जाकर हमारा फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा एंड तुम्हारा स्पर्म के साथ फ्यूज हो पाएगा। तो मान लो ह्यूमन का ये ओवेरी है। ओके, वी हैव द ओवेरी हियर, सॉरी यूट्रस हियर। नाउ दिस इज द ओवेरी। ओवेरी के अंदर मान लो ये हमारा ओवम है। ओके, दिस इज द oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम जिसको बोल देते हैं जनरली हम। ओके, दिस इज आवर सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte को हमको इस रीजन में आना होगा, इसको बोलते हैं इस्थमिक रीजन। ओके, यहाँ पे जब ओवम आएगा तो स्पर्म यहाँ से तुम्हारा मूव करते करते यहाँ पे आएगा और दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये एक जगह से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, सुइटेबल लोकेशन में जब आएंगे तो दोनों में फ्यूजन हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली मोटाइल गैमेट्स स्विम्स टू द फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, हमारा मेल गैमेट्स जो होता है जनरली मोटाइल होता है, इसीलिए ये हमारा स्विम करके हमारा फीमेल गैमेट्स में आता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्शन, स्पर्म इज नॉट ऑलवेज मोटाइल। देखो बच्चों, एक्सेप्शन आ गया, इसका मतलब ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्म इज नॉट ऑलवेज मोटाइल, स्पर्म हमेशा मोटाइल नहीं होगा। देन in some algae and fungi both male and female gametes are motile and usually move through water। तो क्या बोला, ये बात हमको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो आल्गी, कुछ आल्गी होते हैं एंड कुछ फंजाई होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का दोनों मोटाइल होते हैं। ओके, एंड वाटर के थ्रू मूव करते हैं। सो अमेजिंग थिंग्स आर देयर।
Okay. Now come to the bryophytes. Bryophytes and pteridophytes have male motile gametes and female non-motile gametes. So male gametes have to swim through the water to reach the egg. Okay. In angiosperm, both male and female gametes are non-motile. Pollen grains are carrier of male gametes reach to the egg by vector that is known as pollination. Now let me tell you the important things here. तो पहले बोल रहा है कि एक सुइटेबल लोकेशन को पहुंचना होगा मेल एंड फीमेल गेमेट्स को फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. एंड जनरली क्या होता है, क्या बोला, मेल गेमेट जो है मोटाइल होता है, तो मेल गेमेट को मूव करके जो स्विम करके फीमेल गेमेट्स तक पहुंचना होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन. ओके. नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या बोला है कि जो हमारा स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म है हमेशा मोटाइल नहीं होता है. तो इसका क्या मतलब है, समटाइम्स स्पर्म के साथ ओवम या एग भी तुम्हारा मोटाइल होगा. जैसे कि तुम्हारा आल्गी एंड फंगी में कुछ कुछ आल्गी एंड कुछ कुछ फंगी, सारा का सारा नहीं, सोम बोल रहा है, इन सोम आल्गी. ओके. मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर मोटाइल. ओके. दोनों का दोनों मोटाइल होता है. ये पूछ सकता है तुम लोगों को कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेल एंड फीमेल गेमेट्स दोनों का दोनों मोटाइल होता है. तो एग्जांपल हो गया तुम्हारा आल्गी एंड फंजाई. ओके. ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में मेल मोटाइल होता है एंड फीमेल नॉन मोटाइल होता है. सिंपल सा बात है. तो मेल ही यहाँ पे तुम्हारा मूव करेगा. ये तुम लोग को याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा. ओके. इन एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड गेमेट्स आर नॉन मोटाइल. एंजियोस्पर्म में दोनों का दोनों नॉन मोटाइल है बच्चों. पहले तो आल्गी एंड फंजाई में दोनों का दोनों मोटाइल हुआ, एंजियोस्पर्म में दोनों का दोनों नॉन मोटाइल है. तो नॉन मोटाइल है तो कैसे मूव करेगा, जो स्पर्म होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है, उसके अंदर गैमेट्स के फॉर्म में होता है. तो पोलन ग्रेन क्या होता है, कैरियर, कुछ कैरियर के थ्रू से, जैसे कि वेक्टर हो गया हमारा, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, विंड हो गया, वाटर के थ्रू से मूव करके तुम्हारा स्टिग्मा में जाता है तुम्हारा फ्लावर का, एंड थ्रू दैट केमो रिसेप्शन के थ्रू से तुम्हारा पोलन ग्रेन में जो गैमेट्स होता है तुम्हारा फीमेल एग में पहुंचता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. आई होप everything is clear here now. So here a diagram of the transfer of gametes. देखो, जब फीमेल एंड मेल के बीच में तुम्हारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म इजैकुलेशन होता है. तो स्पर्म का जब स्पर्म इजैकुलेशन होता है तो अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होता है. देन इट्स एंटर टू द वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से तुम्हारा यूटेरस, यूटेरस से तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाकर यहाँ पे तुम्हारा स्टमक रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. ओके. यहाँ पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. दिस इज हाउ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स अकर्स इन योर ह्यूमन फीमेल ओवेरी. ओके. नाउ here is a beautiful diagram for you. Here we have our egg. Okay, यहाँ पे हमारा egg है और देखो millions of sperms are racing to reach into the egg and for the fusion or the fertilization process. Okay, now come to the fertilization process. हमारा sperm तो move हो गया, ट्रांसफर हो गया, देन उन दोनों के बीच में sperm and ovum के बीच में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे. फर्टिलाइजेशन को जनरली सिंगेमी भी बोला जाता है, एक टर्म है सिंगेमी. ओके. फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट. देखो हाउ ब्यूटीफुली इट इज रिटन, दैट इज हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. तो एन होगा मेल का एंड एन होगा तुम्हारा फीमेल का, दोनों मिलके क्या देंगे, 2 एंड दैट इज जाइगोट. सो मेल एंड फीमेल फ्यूज होके मेल गैमेट फीमेल गैमेट हैप्लॉइड फॉर्म में फ्यूज होके हमको मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट. ओके. इनका टाइप्स देख देते हैं. टाइप्स क्या है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, जो बॉडी के बाहर होगा, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जनरली ये वाटर में होता है. ओके. देन अनदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, जो बॉडी के अंदर होगा उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थोड़ा देखते हैं.
नाउ आई हैव ए डायग्राम हियर, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फिगर है, तुम लोग इसको देखकर इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी का अभी। ओके, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हो गया फिशेस, क्रस्टासियंस में आ जाते हैं तुम्हारा क्रैब एंड श्रिम्प, मलिश में आ जाते हैं ऑयस्टर, स्क्विड्स, एकिनोडर्म्स में आ जाएंगे सी अर्चिन, सी कुकुम्बर। ओके, सो एग्जांपल्स याद रखने हैं और एक बार बोलता हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फिशेस, क्रैब, श्रिम्प्स, ऑयस्टर, स्क्विड, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर। दिस डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ सी कुकुम्बर। ओके, बिल्कुल तुम्हारा कुकुम्बर जैसे ही दिख रहा है, बट ये मेराइन सी में मिलता है, इसलिए इसका नाम है सी कुकुम्बर है, और ये एक तुम्हारा एकिनोडर्म्स है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ आई हैव वीडियो फॉर यू, लुक इनटू द वीडियो। One more video here. Confined. This is our sea urchin. So I decided to follow it. Confined. Now, ये क्या है बच्चों? What are these? ये क्या है? ये है हमारा ऑस्टर। ओके, ऑस्टर ये क्या है? इसका तुम्हारा नाम बताना होगा, नेम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ क्या है, जल्दी का जल्दी। ओके, अनदर वीडियो फॉर यू। ये क्या है तुम लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में बताओ। ये है हमारा श्रिम्प। ओके, नाउ कम टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल्स है बच्चों रेप्टाइल्स, birds, mammals, few fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, etc. Now we have a diagram here. देखो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ये हमारा स्पर्म है और ये एग है, दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा को ये एंटर कर रहा है। ओके, द स्पर्म इज एंटरिंग और penetrating the corona radiata, the outer layer of the ovum. Now come to the main important process of fertilization. Look at the figure carefully and learn how fertilization occur. देखो जब ट्रांसफर हो जाता है स्पर्म, वो धीरे धीरे नहीं आते, बहुत सारे आते हैं स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, उनमें से कुछ पहुंचते हैं तुम्हारा ओवम के पास। उसके बाद क्या होता है देखो, तो स्पर्म पहले क्या करता है, ये जो है हमारा जोना पेलुसिडा है, उससे पहले भी तुम्हारा और एक लेयर होता है यहाँ पे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन करने के बाद जोना पेलुसिडा में आता है। जोना पेलुसिडा में एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम है ZP3। ZP3 रिकॉग्नाइज करता है स्पर्म को। क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है स्पर्म को। ओके, इट रिकॉग्नाइजेस द स्पर्म। ओके, ह्यूमन का है तो ह्यूमन को रिकॉग्नाइज करेगा। जनरली तुम्हारा ZP3 ह्यूमन ओवेरी के जोना पेलुसिडा में होता है, तो ZP3 हियर रिकॉग्नाइजेस द स्पर्म ऑफ ह्यूमन। ओके, जब रिकॉग्नाइज करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा एक्रोजोम, जो हेड में एक्रोजोम है वो क्या करेगा? बस्ट हो जाएगा। एक्रोजोम क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। ये बस्ट होने के बाद हमको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल रिलीज, एंड जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे तो तुम्हारा जोना पेलुसिडा को यहाँ पे डिजल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारा जोना पेलुसिडा डिजल्व हो जाएगा। जब डिजल्व हो जाएगा तो स्पर्म एंटर कर जाएगा। स्पर्म एंटर करने के बाद तुम्हारा ये जो अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को यहाँ पे छोड़ देगा। ओके, समझ में आ गया ये बातें? और एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो, पहला स्टेप बोला है स्पर्म मेक्स कंटैक्ट विद द एग। एग के साथ कंटैक्ट होगा, टच होगा। उसके बाद क्या होगा? एक्रोजोम रिएक्ट्स विद जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होने के बाद जोना पेलुसिडा विल डिजल्व।
ये डिजल्व हो जाएगा। डिजल्व होने के बाद एक्रोजियम रिएक्ट्स विथ पेरीवाइटालिन स्पेस। फिर क्या करेगा, पेरीवाइटालिन लेयर के साथ ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो हमारा एग का, उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद उसको भी डिजल्व कर देगा ये। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज। देन हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम का एंड स्पर्म का, उन दोनों के बीच में फ्यूज होगा। देन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर इनटू द एग। देखो यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस एंटर हो रहा है एग में। लास्ट स्टेप में क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन which renders the vitelline layers impermeable to sperm। देन यहाँ पे जब ये इसका स्पर्म जो न्यूक्लियस से अंदर चला जाएगा, यहाँ पे हमारा जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से फॉर्म हो जाएगा। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेगा, जो अदर स्पर्म है उनको एंट्री नहीं करने देगा। सो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज अकर। नाउ वी हैव हियर ओवम एग, जो हमारा सेकेंडरी उस साइड का एग होगा यहाँ पे, उसी एग के साथ हमारा जो न्यूक्लियस है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में तुम्हारा फ्यूजन होकर हमको मिल जाएगा जाइगोट। ओके, जाइगोट क्या है, हमारा एनसीईआरटी बोलता है जाइगोट इज द लिंक बिटवीन स्पीसीज ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जाइगोट क्या है, एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में, पहला एंड सेकेंड जनरेशन के बीच में जो लिंक है दैट इज द जाइगोट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हारा दो जनरेशन के बीच में कौन सा लिंक है, दैट इज द जाइगोट। ओके, आंसर इज द जाइगोट। एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। देखो बच्चों कितना मिरेकल थिंग्स है ये, हम जो इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बने हैं जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट। एक जाइगोट से हम बने हैं जो कि एक सिंगल सेल है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है जनरली सिंगल सेल से ही डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एक दिखाए हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कैसे जाइगोट फॉर्म होता है। देखो हाप्लॉइड स्पर्म एंड हाप्लॉइड एग फर्टिलाइज करके इन दोनों के बीच में हमको मिल गया है डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, डिप्लॉइड जाइगोट में यहाँ पे देखा गया है पेरेंटल होमोलॉग एंड मैटरनल होमोलॉग, ये जनरली क्रोमोसोम है। ओके, इसके बारे में बताया है। सो सिंपली वी हैव जाइगोट हियर। ओके, नाउ द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, जब जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट से जो बेबी का फॉर्म होगा, जो फीटस का डेवलपमेंट होगा, उसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस इज नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो। Zygote undergo mitotic division that is known as cleavage and cellular differentiation leading to the development of multicellular embryo. While cell division increases the number of cells in the developing embryo, the cell differentiation help in group of cells to undergo certain modification to form specialized tissues and organs. तो यहाँ पे कुछ बातें हमको सीखना होगा, समझना होगा। तो जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन क्या करता है, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस होता है, उस माइटोसिस को हम क्लीवेज बोलते हैं। एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन अकर। ओके, देन सेलुलर डिफरेंशिएशन जब होता है एम्ब्रियो बनता है। तो सेल डिवीजन का काम क्या है और जो हमारा सेल डिफरेंशिएशन का काम क्या है, यहाँ पे देखते हैं। जो सेल डिवीजन हुआ, जो हमारा माइटोसिस, जो क्लीवेज हुआ, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर को इंक्रीज करा रहा है। इतना बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोटिक डिवीजन एंड सेल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोसेस सेल नंबर इंक्रीज करता है। इट इज सो सिंपल, दैट इज माइटोटिक डिवीजन, और यू कैन से हियर दैट इज क्लीवेज। ओके, क्लीवेज के वजह से हमारा जाइगोट है, जाइगोट का सेल नंबर इंक्रीज होता है। देन the cell differentiations help in the group of cells to undergo certain modification from specialized tissues and organ. So cell differentiation का काम क्या हो गया, वो टिश्यू एंड ऑर्गन को फॉर्मेशन करता है। ओके, इतना बात ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल में याद, एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनली एम्ब्रियो डेवलप इनटू एन ऑफस्प्रिंग। फिर तुम्हारा क्या होगा,
ऑर्गन्स एंड टिश्यू बनने के बाद तुम्हारा जो एम्ब्रियो है एक बच्चा बन जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू द साइट्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो एम्ब्रियोजेनेसिस कौन से प्लेस में हो रहा है उसी के हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वन इज योर ओविपेरस, सेकेंड वन इज योर ओवोविविपेरस, थर्ड वन इज योर विविपेरस। ना कम टू द ओविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं उसका पहला मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस एंड एम्फीबियंस जनरली ऑन फर्टिलाइज्ड एग को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अपने बॉडी के अंदर ऑन फर्टिलाइज्ड एग रखेंगे, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चाहिए होगा तो वो क्या कर देंगे, अपना एग को पानी में डाल देंगे। तो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस इज एक्सटर्नल, तो पानी में होगा तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा। सो यहाँ पे जब एक्सटर्नल होता है तो पेरेंटल केयर कम होता है, सो नो पेरेंटल केयर। सो ओविपेरस का पहला एग्जांपल था फिशेस एंड एम्फीबियंस। इसमें क्या होता है, दे ले ऑन फर्टिलाइज्ड एग एंड फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस इज जनरली एक्सटर्नल, नो पेरेंटल केयर फॉर यंग। सेकेंड एग्जांपल क्या है, देन इज इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, दे फर्टिलाइज्ड एग, फ्यूजन वाला फर्टिलाइज्ड वाला एग अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट एम्ब्रियोजेनेसिस इज एक्सटर्नल, पेरेंटल केयर इज मोर हियर। हियर वी हैव फिश। ओके, फिश में तुम्हारा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, स्नैक्स में होता है तुम्हारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में होता है तुम्हारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ कम टू द विविपेरस। विविपेरस क्या होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द फीमेल बॉडी। जो एम्ब्रियो होता है यहाँ पे एग या फर्टिलाइज्ड एग के बाद नहीं हो रहा है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है तुम्हारा फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड होता है, उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, विविपेरस बोलेंगे। एंड जब ये तुम्हारा जो एम्ब्रियो है फीमेल बॉडी में अगर इम्प्लांटेड हो रहा है तो ऑब्वियसली मदर के बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, सो दे डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट। ओके, प्रोवाइड मैक्सिमम केयर, ऑब्वियसली अपने बॉडी के अंदर रखेंगे तो केयर तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ओके, एग्जांपल्स हो गया मामल्स। नाउ कम टू द ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस का एग्जांपल है शार्क्स एंड रेटल स्नेक। रेटल स्नेक में और शार्क्स में तुम्हारा ओवोविविपेरस होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, द रिटेन फर्टिलाइज्ड एग। पहला बात हमको ध्यान रखना होगा, ये जो है फर्टिलाइज्ड एग को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इनसाइड द एनिमल बॉडी। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है इनसाइड द बॉडी होगा। However, animal does not provide nourishment for the embryogenesis, which is basically obtained from the yolk in the egg itself. तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनो, ये अपने बॉडी में फर्टिलाइज एग को रखेंगे, उसी को उसका डेवलपमेंट करेंगे एम्ब्रियो तक, बट जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन नहीं देंगे। ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो जो हमारा एग है खुद के एग में जो यॉक है उसी में से न्यूट्रिशन लेके ये खुद को डेवलप करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट ओविपेरस, ओवोविविपेरस। सो दिस इज आवर रेटल स्नेक एंड दिस इज आवर शार्क। ओके, नाउ कम टू द एम्ब्रियोजेनेसिस इन द ह्यूमन। ओके, क्लीवेज ऑफ जाइगोट देखेंगे। नाउ ये हमारा ओवेरी है, ओवेरी में देखो ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकडाउन होके वहाँ पे ओवुलेशन हुआ है। ओवुलेशन होने के बाद हमको मिला है हमारा oocytes, दैट इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ हमारा स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमको जाइगोट मिला है। जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ है, यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्लीवेज। ओके, यू कैन सी हियर द फर्स्ट क्लीवेज। जस्ट ए मिनट बच्चों, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। ओके, सो जाइगोट के बाद यू कैन सी हियर, ये हमारा जाइगोट है। एक मिनट बच्चों, ये हमारा है जाइगोट। ओके, दिस इज आवर जाइगोट। जाइगोट के साथ पहला क्लीवेज हुआ, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से हमको क्या मिलेगा, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से तुम्हारा 8 सेल, 8 सेल से तुम्हारा 16 सेल बन जाएगा।
जब 16 सेल बन जाता है 8 to 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं 8 to 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। ओके, वी कॉल देम मोरूला। मोरूला से तुम्हारा बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से बन जाएगा तुम्हारा इम्प्लांटेशन हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का। दिस इज हाउ एम्ब्रियोजेनेसिस अकर। नाउ ये तुम्हारा जाइगोट से सिंपली बन गया ब्लास्टोसिस्ट, ये तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो का। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ओके, नाउ यू कैन सी हियर मोर क्लियरली, ये हमारा ओवम है। ओवम के साथ यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म, ये ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमको मिल गया जाइगोट हियर। जाइगोट का 2 सेल 4 सेल 8 सेल का क्लीवेज हुआ। देन हमको मोरूला मिला, मोरूला से हमको मिला ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस क्या हुआ, इम्प्लांटेड हो गया, देखो यहाँ पे यूटेरस में। ओके, दिस इज व्हाट embryogenesis is. Now here I have made a slide of microscopic embryogenesis for you guys. ये तुम्हारा डे 1 में ऐसा होता है, डे 2 में ये देखो सुबह में दिखाया गया था। ये सुबह 2 नंबर मतलब डे नंबर 2 का सेकेंड हाफ में दिखाया गया था, और ये डे 3 में, डे 4 में, डे 5। ओके, ये आगे गया है। ओके, नाउ ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, डे 2 का ये डायग्राम है। ओके, ये तुम्हारा डे 3 का है। एंड यू कैन सी हियर द ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस में देखो जूना पेलुसिडा अब तक है, तुम्हारा आउटर लेयर तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट है, देन ब्लास्टोसील बन गया है, देन यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट है। ओके, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है बच्चों। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद आता है हमारा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता क्या है? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का सिंपली मतलब है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ओके, 3 जर्म लेयर प्रोड्यूस करना है। क्या क्या जर्म लेयर प्रोड्यूस करना है? यू कैन सी हियर, हमारा जो ब्लास्टोसील था, ब्लास्टोसील में तुम्हारा ब्लास्टोसील से ही तुम्हारा मेजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों का फॉर्मेशन होना को बोलते हैं हम गैस्ट्रुलेशन। एक्टोडर्म इज द इनर लेयर, एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर, मेजोडर्म इज द मिडिल लेयर। ये हो गया मिडिल लेयर वाला, ये हो गया आउटर लेयर, ये हो गया इनर लेयर। इतना याद रखना है गैस्ट्रुलेशन में। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। कौन कौन से जर्म लेयर फॉर्म हो रहा है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म। एंडोडर्म है तुम्हारा इनर लेयर, एक्टोडर्म है आउटर लेयर, एंड मेजोडर्म है तुम्हारा मिडिल लेयर। यू कैन सी हियर, अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा है इनर लेयर, दैट इज एंडोडर्म। ओके, नाउ ये तुम्हारा है एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंड जो तुम्हारा ये मिडिल में है, ये मिडिल हो गया तुम्हारा मेजोडर्म। इतना याद रखना है तुम लोगों को। नाउ कम टू द ऑर्गेनोजेनेसिस। तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन होने के बाद ऑर्गेन्स टिश्यूज फॉर्मेशन होगा। तो ये है हमारा जाइगोट, जाइगोट से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना। यहाँ पे तुम्हारा 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गया। क्या क्या? एंडोडर्म जो कि एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर है, मेजोडर्म जो कि मिडिल लेयर है, एंडोडर्म जो कि तुम्हारा इंटरनल लेयर है, और इसी से ही तुम्हारा बन जाता है जर्म सेल जो कि तुम्हारा मेल के लिए स्पर्म एंड फीमेल के लिए एग है। तो एक्टोडर्म क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ये जनरली हमारे बॉडी का आउटर सरफेस बनाता है, दैट इज स्किन, जिसको हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं। और एक्टोडर्म से ही तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन वगैरह बनता है, न्यूरल क्रेस्ट जो कि तुम्हारा मेलानिन पिगमेंट बनता है। मेजोडर्म जैसे तुम्हारा डोर्सल पार्ट जैसे नोटोकॉर्ड फॉर्म होता है, तुम्हारा बोन टिश्यू बनता है, किडनी का ट्यूबुल का टिश्यू बनता है, आरबीसी बनता है, फेशियल मसल बनता है। एंडोडर्म से तुम्हारा स्टोमा का सेल बनता है, थायराइड का सेल बनता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब का सेल बनता है। सो ये तुम्हारा, तुमको क्या करना है बेसिकली, इसको याद रखना है कौन से जर्म लेयर से कौन सा टिश्यूज और कौन सा ऑर्गेन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है बच्चों? जनरली पार्चुरेशन में पहले होगा जो ये देखो, पार्चुरेशन में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम अच्छे से। ओके,
ये पार्चुरेशन में जो बच्चा है, जो बेबी है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो ये देखो बेबी पूरा मेच्योर हो गया है। बेबी मेच्योर होने के बाद क्या करेगा, अभी इंड्यूस करेगा पार्चुरेशन के लिए। पार्चुरेशन का मतलब क्या है मैं लिख देता हूँ, सिंपली इसको हम बोलेंगे डिलीवरी। ओके, पार्चुरेशन का मतलब होता है सिंपली डिलीवरी, बच्चा का डिलीवरी होना को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो हमारा है, फिटस जो है बिल्कुल अच्छे से डेवलप्ड हो गया है, उसको अभी क्या करना है, डिलीवरी करना है। तो डिलीवरी किससे इंड्यूस होगा, फिटस इंड्यूस करेगा डिलीवरी का। ओके, नाउ यहाँ पे देखो फीमेल वेजाइना का सर्विक्स है, यहाँ पे तुम्हारा सर्वाइकल केनाल होगा, यहाँ पे तुम्हारा सर्वाइकल केनाल होगा। सर्वाइकल केनाल जनरली बंद होता है, सर्विक्स जो है बंद होता है। तो क्या करेंगे, पहले जो बेबी आएगा सर्विक्स को थोड़ा स्ट्रेच करेगा। जब स्ट्रेच होगा सर्विक्स, वहाँ पे एक रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। दैट हार्मोन गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज अनदर हार्मोन दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूटेरस को तुम्हारा इंड्यूस करेगा टू कंट्रैक्ट द यूटेरस। जब यूटेरस कंट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा सर्विक्स जो है डायलेशन होगा। तो पहला स्टेज हो गया तुम्हारा सर्विक्स का डायलेशन। जब डायलेशन होगा, ओके, डायलेशन होने के बाद, 1 मिनट आगे चलते हैं। डायलेशन होने के बाद तुम्हारा बेबी का हेड को रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के बाद बेबी को बर्थ दिया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, देन डिलीवरी कर दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट पार्चुरेशन प्रोसेस इज। ओके, नाउ यू कैन सी हियर एन इमेज। जो मदर में जो प्लासेंटा होता है वो जनरली डिटैच हो जाता है, देखो, थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू से डिटैच हो जाता है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, सॉरी ये हमारा है प्लासेंटा, प्लासेंटा डिटैच हो गया है। ओके, ये हमारा प्लासेंटा का स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर। ओके, now move to the next slide. Okay, now come to the reproductive cycle. Reproductive cycle is most important. इसमें कुछ पढ़ना ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम बहुत डिटेली पढ़ने वाले हैं, बट जो डिफरेंस है क्या क्या चीज़ों में वो बता दे रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं जनरली, एक पढ़ते हैं एस्ट्रस साइकिल, एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है पहले देखेंगे। पहले किस में होता है, ये जनरली मामास में होते हैं। ओके, एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मामास में होते हैं। एस्ट्रल साइकिल तुम्हारा मामास का नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। किस में होते हैं, एस्ट्रल साइकिल जनरली मामास का नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल काउस, सीप्स, रेड डियर्स, डक, टाइगर्स में होते हैं। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारा मामास का प्राइमेट्स में होते हैं, दैट इज एग्जांपल ह्यूमन, एप्स एंड मंकीज। एस्ट्रस साइकिल एक छोटा सा पीरियड होता है जिसको हम एस्ट्रस फेज और हीट फेज बोलते हैं। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे फेजेस आते हैं जिसमें प्रोलिफेरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज आता है। यहाँ पे जो एस्ट्रस और हीट फेज जो बोला जा रहा है इसका क्या मतलब है। जनरली नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, जब कॉपुलेशन चाहिए होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहिए होता है, अपना बॉडी जो होता है क्या होता है, जो हमारा नॉन प्राइमेट्स का जो बॉडी होता है क्या होता है, हीट फेज में चला जाता है। उनका बॉडी हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है तो उस टाइम दे डिजायर फॉर द सेक्स। ओके, दे वांट फॉर द सेक्स एंड दैट इज नोन एज योर एस्ट्रस साइकिल। और ये छोटा है। ओके, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड डजंट फ्लो इन दिस साइकिल। कौन से साइकिल में, एस्ट्रस साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, जो तुम्हारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है उसका ग्रोथ होता है। देन सिक्रीटरी फेज में तुम्हारा जो न्यूट्रिशन फूड जो है वो सिक्रीट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लोज इन द साइकिल। ओके, नाउ वी हैव ए ग्रेट पिक्चर हियर, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये ऑल अबाउट आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो क्या होता है हमारा, सपोज मान लो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, एक साइकिल है, ये जनरली 28 डेज टू 29 डेज का होता है नॉर्मली। तो किसी में 28 डेज होता है, किसी में 29 डेज होता है। तो क्या होता है हमारा जो बॉडी में कुछ
पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम FSH LH बोलते हैं। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये दोनों हार्मोन का इंक्रीजिंग लेवल इंक्रीज होता है तो हमारा जो प्राइमरी जो फॉलिकल्स होते हैं हमारे ओवेरी के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। तो यू कैन सी हियर दीज आर द डेवलपिंग फॉलिकल। जब ये डेवलप होते हैं तो हमारा एस्ट्रोजन लेवल भी इंक्रीज होता है। जब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है तो इनका लेवल जो फॉलिकल है मैच्योर हो जाता है। जब फॉलिकल मैच्योर होता है उसी टाइम जो LH एंड FSH हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। जब हाईली इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारा मैच्योर जो फॉलिकल था जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं उसका रप्चर हो जाता है। जब ये रप्चर होता है तो वहाँ से तुम्हारा ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के वजह से वहाँ पे तुम्हारा ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम प्रोड्यूस होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है इसको हम बोलते हैं कर्पस ल्यूटियम। कर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है हमारा LH ही मेंटेन करता है हमारा कर्पस ल्यूटियम को। ना यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में तुम्हारा देखो मेंसेस है, मेंसेस लिखा हुआ है। मेंसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लीडिंग होना। ओके, देन कम टू द प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज क्या है, प्रोलिफेरेटिव फेज में देखो यहाँ पे देख सकते हो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ना कम टू द सिक्रीटरी। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, तुम्हारा न्यूट्रिशन सिक्रीट होता है फॉर द ओवम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स था। सो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ आज। सो वी हैव कंप्लीटेड टूडेज क्लास एंड द चैप्टर ऑल्सो कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। सो कंग्रेचुलेशन टू ourselves, we completed a chapter successfully. So if you like my videos then like the videos, comment in the video and share the video, subscribe the channel. Thank you so much, have a good day, bye bye, thank you.